problems, the miscellaneous word problems, so that I'll be starting with a new chapter from Monday onwards. Yes. So consider the following question. Please confirm, am I audible? Am I audible? Okay. Consider this question. A jet of an enemy is flying along the curve y equal to x square plus 2. This is a parabola, right? So even if I'm not aware of the specific shape of this, hardly matter. I generally prefer to draw, say, the diagram like this. So this is the curve y equals x square plus 2. A soldier placed at the point 3 comma 2. Now we have the methods how to be sure that whether this point lies outside this parabola or inside, but again this is my rough sketch, so let me consider that the point is outside the parabola, right? So point is 3 comma 2. Question is, what is the nearest distance between the soldier and the jet? So what exactly is given? Jet is flying and taking this particular path, a parabolic path, and the soldier is placed at this particular place. So at what point, which is the minimum distance, so that if this soldier has, say, a missile and he want to shoot this plane, so the minimum distance should be preferred in that case. So that's a practical application, and actually the army do this. So it's very easy to use these software programs and analyze the situation so that they will get the path traced by any moving object in the sky as the enemy's jet, and then one can decide upon what is the perfect time to take a shoot. So say this is the nearest point P, and this is general point x comma y. So what exactly is required? We need to minimize the distance AB. यही तो कहा गया है, what is the nearest distance between the soldier and jet? So minimum distance is AB. Now what is AB actually? It's a distance formula. X minus 3 whole square plus y minus 2 whole square. Note carefully. We are already given the value of y. इसी कर्व का ही तो है ये, तो y की वैल्यू अगर हम रिप्लेस कर दें, y है x स्क्वायर प्लस 2, राइट? ये y की वैल्यू एंड माइनस 2 ऑलरेडी आया हुआ था, सो 2 से 2 कैंसल एंड वी लेफ्ट विद x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 4. लेट मी से दिस इज इनिशियली l, द लेंथ है l कह दिया. रूट के अंदर मेरा फंक्शन आ गया है स्क्वायरिंग, तो l डैश कह देते हैं उसे, एंड दिस वुड बिकम x minus 3 whole square plus x power 4. I have the function in terms of single variable l only, l dash, variable तो x हो गया. So now we will follow the usual method, dl dash by dx. For maxima minima, we definitely need to find the derivative. So this is a simple derivative. For increasing or decreasing, put derivative equals 0, और इससे क्या हो जाएगा, 2 into x minus 3 plus 4x cube is 0. 2 common and cancel and rearrange. So 2x cube plus x minus 3 is 0. I am getting actually one cubic equation. So splitting the middle term तो possible नहीं है. So how should we solve this? How will we be able to get the root of this? Anyone?
द आंसर लाइज इन क्लास 11 नाइन्थ में हमने सीखा हुआ है फैक्टर थ्योरम. Look carefully. Clearly x is equal to 1. Satisfy this. अब ये कैसे 1 सोचा जाता है? याद करिए, जो भी यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट 3 है, तो 3 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 3. तो इन चारों में से ही अगर रियल रूट है, यस, तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया समृद्धि हमने, परफेक्ट, और उससे आ गया कि x आ गया 1 एज द रियल रूट. बाकी दोनों हमें मतलब नहीं है, वो इमेजिनरी होंगे. तो व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई. फर्दर गेट द डबल डेरिवेटिव. So that is simply 2 and plus 12x square. Though it is clearly visible, it is positive, but when I calculate this at x is equal to 1, तो 1 के ऊपर आंसर आ गया 14, which is positive. डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? L dash, that is L is minimum. This is what we wanted. डिस्टेंस मिनिमम हो गया, बट क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. आपसे तो डिस्टेंस पूछा था. अगर मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई है, y के अंदर पुट कर देते हैं कर्व में. I will get the value of y. So basically point B के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,3. Therefore नियरेस्ट डिस्टेंस AB था और वो आ चुका था इस एक्सप्रेशन के इक्वल. आपको y निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि कोऑर्डिनेट नहीं पूछे थे. आप x निकाल दिया और यहाँ x की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए एंड सिंप्लीफाई. तो दैट इज 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 रूट 5 यूनिट्स is your required answer. Okay, before we move on, everyone, please mark your attendance. Any doubt to anyone? Okay, check out this next question. A wire of length 34 centimeter is to be cut into 2 pieces. Wire of length 34 centimeter. This is a wire whose length is 34 centimeter. One of the pieces is to be bent into the shape of a square. तो मान लो मैंने यहाँ से कट कर दिया. If this length is taken as x centimeter, of course, the remaining portion 34 minus x centimeter. और फर्स्ट पार्ट को स्क्वायर बनाया है and other into the rectangle. So this is say converted into the square and this length is converted into the rectangle such that length of rectangle is twice its breadth. So this is important condition. आप चेक करिए, यहाँ पहली बात कंसेप्ट 6-7 क्लास का यूज होगा. ये मैंने x यूनिट की लेंथ से स्क्वायर बना दिया और ये मेरा रेक्टेंगल बन गया. इफ आई टेक से दिस लेंथ एज a और यहाँ आपको क्या कहा है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस द ब्रेड्थ.
अगर ब्रेड्थ को b ले लिया, length will be 2b. A simple observation. So one need to understand how to comprehend the language. ये अगर सोच लिया फिर तो बहुत इजी है आगे फर्दर क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? वेयर शुड द वायर बी कट so that sum of areas of square and rectangle is minimum. So check this out. x वाली लेंथ से मैंने ये स्क्वायर काटा था, तो पेरीमीटर इसका x हो गया। तो क्लियरली पेरीमीटर स्क्वायर का 4a है, एंड दिस इज एक्चुअली देन x। एंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ये आ चुका है 34 माइनस एक्स। बस यहां से a आ गया x/4, एंड ये कितना आ गया? 6b, 3b इंटू 2, 6b। तो b की वैल्यू 34 माइनस x/6। अब हमें कंसीडर करना है सम ऑफ एरियाज। तो s या a कह दो, एरिया स्क्वायर का एरिया, साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो बेसिकली s is a square plus 2b square. I already have the value of a with me, अभी निकाल चुके हैं, और b की जगह रख दिया 34 माइनस एक्स। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, लेट्स से ये आ गया, प्लस ये 36 आ जाएगा नीचे, तो 2/36 दे देगा 1/18। डू नॉट ओपन दिस स्क्वायर, अननेसेसरी टफ मत बनाओ। लेट दिस बी द फंक्शन in terms of x. Any doubt up to this step? बस इसके बाद ds/dx निकाला and equate that to 0. So ये 2x/16 and here it is 1/18 और 2 टाइम्स 34 माइनस एक्स, और अंदर वाले का डेरिवेटिव चेन रूल से ये आ गया। पुट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। सिंपल एक्सप्रेशन आ रहा है, आई डोंट रिमेंबर दैट, बट मे बी शायद 6 सेंटीमीटर या जो भी आएगा वो आप देख लेना। एक्स आ गया, गेट द डबल डेरिवेटिव एंड द लेंथ्स ऑफ बोथ द पोर्शंस। एंड सिंस मिनिमम करना है आपको एरिया, तो डबल डेरिवेटिव हैज टू बी positive. I'm still waiting. In case if you have any doubt, you can always ask. Check this out. Another very important type of question. It's all about visualization. एक टैंक की बात करी है with a rectangular base and rectangular sides. Open at top. This is important. Open at top. तो बेसिकली मेरे पास कैसा भी एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड हो गया ना, ये बेसिकली बेसिक आइडिया ये हो गया। सो ये मेरे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, is to be constructed so that, ये मैं लिख देता हूं ओपन राइट, its depth is 3 मीटर। डेप्थ माने here it is its height, वो 3 मीटर गिवन है, and volume is 75.
75 meter cube. Anything given to me is constant. तो अब आप चेक करिए, if I take this as L and this as B, so LBH हमें पता है वॉल्यूम होता है. I am already given with the height as 3, and this will give me the LB product as 25 और B आ गया 25 by L. गिवन जो है उससे हम एक वैल्यू जनरली एलिमिनेट कर लेते हैं. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नेक्स्ट कंडीशन कही गई है, पढ़िए जरा, समझिए ध्यान से. इफ द बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹100 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, ये मेरा बेस है. बेस की कॉस्ट जो है वो अलग बताई गई है पर स्क्वायर मीटर. तो कॉस्ट को अगर मैं C कह दूं तो बेस का एरिया कितना है, L इंटू बी. बेस इज सिंपल रेक्टेंगल, और 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट अगर 100 रुपीज है तो LB की कॉस्ट 100 इंटू LB हो जाएगी. क्लास 6 यूनिटरी मेथड हमने सोचा है. फर्दर, और अब कॉस्ट कहां से आ रही है, नेक्स्ट कह रहे हैं 50 रुपीज किसकी है, पर स्क्वायर मीटर फॉर दी साइड्स. अब आप चेक करिए, ऊपर से तो ओपन है, इसकी रिमेनिंग 4 साइड्स हो गई. तो 4 साइड्स कौन कौन सी होंगी, एक दे देगा ये. अगर मैं साइड की बात अलग से यहाँ पे, चलो इधर लिख देता हूं मैं, फ्रंट वाला एरिया वो क्या होगा, L इंटू हाइट 3L हो गया. ये फ्रंट एरिया है, फ्रंट वाला रेक्टेंगल अगर आप इसे विजुलाइज करें. एक ऐसा ही बैक में भी रहा होगा, प्लस अब इस रेक्टेंगल पे फोकस करो, इसकी कितना हो गया ये B इंटू 3, और ये भी तो बैक साइड पे भी डबल रहा होगा. सो दिस इज द एरिया ऑफ 4 वॉल्स. इन सिंपल वर्ड 2H into L plus B. Those who are comfortable using the direct formula, so I have used this formula for area of 4 walls. और logically आप ऐसे लिख सकते हैं, ये अभी मैंने सिर्फ एरिया लिखा है, पर इसकी कॉस्ट क्या है, 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर. तो ये अगर 1 स्क्वायर मीटर की है तो 50 रुपीज के हिसाब से टोटल कॉस्ट ये हो जाएगी. Getting the area, this cost function is important और logical है. यहां पहुंच गए, इसके बाद तो now it is very simple. Any doubt to anyone in getting this C? Please do let me know. जब हम बात करेंगे बेस की, तो वन कैन इजीली नोट, बेस मेरा ये वाला रेक्टेंगल है, नीचे वाला ये, इसका एरिया सिंपली L इंटू बी हो जाएगा. तो ये तो इस रेक्टेंगल का एरिया आया है, और एरिया किस यूनिट में आया होगा, मीटर स्क्वायर. और बेस के लिए पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट बताई थी 100 रुपीज. सो अप्लाई the fundamental rule, idea of your unitary method 6th 7th क्लास वाला. अगर एक टॉफी 2 रुपए की है तो 5 टॉफी कितने की आएंगी, जस्ट मल्टीप्लाई दैट टू गेट ₹10. तो अगर मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 100 रुपीज है, तो LB यूनिट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 100 इंटू LB. प्लस में अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पोर्शन, और वो है ये एक्सप्रेशन मैंने कहां से पहले लिखा, 3L. तो चेक इट आउट. अब अगर आप फ्रंट पे नोट करें, ये वाला एक रेक्टेंगल रहा होगा, फ्रंट वाला व्यू समझिए, ये रेक्टेंगल, और ऐसा ही रेक्टेंगल इसके बैक साइड पे जा रहा होगा. तो फ्रंट रेक्टेंगल का एरिया कितना है,
L इंटू इट्स हाइट LH, H आपको 3 गिवन था तो 3L हो गया फ्रंट का एरिया। पीछे भी ऐसा एक रेक्टेंगल रहा होगा, उसका एरिया ऐड कर दिया। देन ये आ चुका है। अब ये 3B कहां से आया? एक ये वाला रहा होगा हमारे पास रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, और इसी की तरफ पीछे की तरफ ये वाला रेक्टेंगल रहा होगा लाइक दिस। तो अब इस एक रेक्टेंगल का एरिया क्या है जो येलो डार्क से बनाया है? B इंटू एच माने 3B, बैक साइड वाला ऐड हो गया तो 2 इंटू 3B। ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास इसके एरिया का। और फिर यूनिटरी मेथड से, क्योंकि 50 रुपीज दिया था फॉर पर स्क्वायर मीटर, इंटू 50 कर देंगे। हाँ ठीक है आयुष, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज बेसिकली माय कॉस्ट फंक्शन। क्विकली इसको सॉल्व अगर मैं करूं तो C आ गया 100 LB प्लस 3 6, यहां से 3 कॉमन 6 आ गया, 6 इंटू 50 300 इंटू L प्लस B। और L B की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं एज 25/L। सिंगल वेरिएबल में ही तो लाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, so that the cost function will be finally 2500 plus 300 into L plus 25/L. Once I have reached up to this step, complete in your homework. सिंपल है। इसके बाद तो डेरिवेटिव इक्वल टू 0, डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। Check this out. The lengths of the sides of isosceles triangle are the following. ये दोनों इक्वल दिया है तो एक रफ स्केच अगर मैं सोचूं आइसोसेलेस ट्राइंगल का, समथिंग लाइक दिस। और ये अगर मैंने इक्वल साइड्स ले लिया 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड साइड दिया है 18 माइनस 2x स्क्वायर। Calculate the area of the triangle in terms of x and find x which will maximize the area. For area, let me draw this perpendicular. So one can easily note if this is say point D, ये इसका आधा हो गया तो ये लेंथ 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, इसका हाफ कर दो 18 माइनस 2x स्क्वायर। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज मैंने बस यूज किया है। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं, इफ दिस हाइट AD इज h, सो पाइथागोरस थ्योरम से इन ट्राइंगल ADC h स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। साइड स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर वो कर दिया। प्लीज मेक श्योर द कंसेप्ट इज क्लियर। कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए लेट मी नॉट ओपन द स्क्वायर, ये RHS में माइनस कर दिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस विल गिव मी a प्लस b इंटू a minus b, which further simplifies to 18 into ये x स्क्वायर कैंसल हुआ, यहाँ ये
2x² विच इज 36x², और हाइट नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो दैट इज 6x. To understand how I did apply the Pythagoras theorem to get the height of this triangle. h स्क्वायर था ना इसके इक्वल, तो स्क्वायर रूट ले लिया, सिंपल 6x आ गया. अब इसके बाद बहुत इजी है. एरिया ऑफ द ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट. बेस इज BC. BC ध्यान से देखो, ये 18 माइनस 2x² है, और AD अभी हमने निकाला एज हाइट विच इज 6x. सो हाफ, यहां से 2 कॉमन, ये 2 से 2 कैंसल, 6 बाहर, और x से मल्टीप्लाई कर दीजिए. So this is basically expression for the area. Further, do it in your homework. तो मेन वही है, एरिया के एक्सप्रेशन तक हम कैसे पहुंचे हैं. Any question? Any doubt to anyone? एंड ओपन बॉक्स, यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस. तो स्क्वायर बेस है, राइट. तो वन कैन इमेजिन, चलो मैं कंप्लीट प्रॉपर डायग्राम, थोड़ा डिफिकल्ट है, चलो मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूं कि ये चलो आपका रहा होगा कोई डायग्राम लाइक दिस. सो स्क्वायर बेस इज टू बी मेड of given quantity of sheet of area A square. What does that mean? आप ये ओपन है, तो मैं बैक्स ये कह देता हूँ, चलो ये ऐसे स्टैंडिंग है और ये यहां से ओपन है. आपको शीट का एरिया कांस्टेंट गिवन है, तो एरिया इज A स्क्वायर, दिस इज गिवन, और व्हाट इज इट्स एरिया एक्चुअली. लेट मी से दिस इज x, दिस इज x एंड दिस इज y. तो एक्चुअल में अगर मैं इसका एरिया सोचूं, तो अप्लाई द सिंपल लॉजिक. एरिया मेरा एक तो ये देने वाला है, और इसका एरिया तो सिंपल आ गया x² प्लस. अब अगर आप ध्यान से देखें, तो मेरे पास यहां जो रेक्टेंगल रहा होगा, दिस, इफ यू इमेजिन केयरफुली, एक रेक्टेंगल जो ये रहा है, जितना एरिया इसका होगा इतना ही एरिया ऊपर वाले रेक्टेंगल का, साइड वाले का, बैक वाले का, नीचे वाले का रहा होगा. तो वी हैव 4 सच रेक्टेंगल्स. तो 4 सच रेक्टेंगल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये गिवन है A स्क्वायर के. दिस विजुअलाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके बाद तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. लेट मी एलिमिनेट y. x को एलिमिनेट करना मुश्किल है क्योंकि क्वाड्रेटिक बनी हुई है उसमें. क्यों करा है, दैट वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड मेनी टाइम्स. सो एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया. इसके बाद बहुत इजी है. नाउ शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम इज दिस. वॉल्यूम क्या होगा इसका,
LBH. तो x square y, I already have calculated y. y की वैल्यू रख दीजिए और एक x से x कैंसल और x को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर देता हूं. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वॉल्यूम. याद रखिए a तो कांस्टेंट है. गेट द डेरिवेटिव एंड फॉलो द यूजुअल मेथड. चेक करिए एंड रिमाइंड मी, क्लास 10:20 तक होती है 10:30 तक? मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो रहा हूँ. 10:30. यस. Any doubt to anyone in this question? Check out this another very important question. Question तो easy है, but एक चीज यहाँ सबसे important है. जब बोर्ड में जब ये आया था, most of the student have missed that. तो quickly इसको देखेंगे. A closed circular cylinder has the volume this. So we are given with a cylinder, a normal cylinder. So this is my radius and this is my height. वॉल्यूम आपको गिवन है, फिक्स हो गया, कांस्टेंट है. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. इजी एलिमिनेशन, ऑफ कोर्स एच का रहेगा. What will be the radius of its base so that total surface area is minimum? So now we have to minimize its total surface area. तो चेक करिए टोटल सरफेस एरिया. चलो एरिया है, मैं ए कह देता हूँ. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया? TSA ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस प्लस इट इज क्लोज्ड, तो ऊपर और नीचे वाले सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा. तो मेंसुरेशन का सिंपल फॉर्मूला. और इसके बाद h की वैल्यू ये रही, आप ऊपर निकाल चुके हैं. Second term, of course, it's already in terms of R. So A will be, what is this? 2156 into 2. 4312. पाई से पाई कैंसल और एक R से R कैंसल. तो चेक कर लीजिए यहां एरिया फंक्शन क्लियर है इतना. For maximum minima, I need to find its derivative. तो 1/r का डेरिवेटिव -1/r स्क्वायर हो गया एंड प्लस क्लियरली इसका डेरिवेटिव 4πr आ गया. फॉर मैक्सिमम मिनिमा इट इज इक्वेटेड टू 0 और ये मैं RHS में ले जाके पॉजिटिव कर देता हूं. तो नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर दिया. क्रॉस मल्टीप्लाई, R क्यूब की वैल्यू आ गई 4312 अपॉन 4π. 4 के ऊपर ये कैंसल हो रहा है, वैल्यू तो दी हुई है. नेक्स्ट क्या आएगा? एक बार जरा बताना डिवाइड करके इसको 4 से कितना आ रहा है.
एनीवन? फर्स्ट मिस्टेक कईयों की यहां हुई थी। 4312 को डिवाइड करना है 4 से। सो 4, सॉरी, ये तो 4 वन जा 4, फिर 31, तो ये किस पे गया आपका? 7 के ऊपर, एंड देन 8। ठीक है ना कैलकुलेशन ये? राइट, सो दिस इज 1078। दो डिजिट एक साथ उतारी हैं। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड कि ये कैसे स्टूडेंट्स भूल सकते हैं 12th वाले, बट ऐसा हुआ। एनीवे anyway, इससे मेरी आर की वैल्यू क्या आ गई? 1078 डिवाइडेड बाय पाई की पावर 1/3, और यूनिट है सेंटीमीटर। नेक्स्ट व्हाट? नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां आई, जिन्होंने वो सही कर दिया। याद करिए, ऐसे हमारे 2-3 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं कि पाई की टर्म में ही हम आंसर छोड़ रहे हैं एज रिकमेंडेड। बट इफ यू नोट केयरफुली, 1078 11 से डिविजिबल है एग्जैक्टली। देयर मस्ट बी सम रीजन ये नंबर देने का। पाई की वैल्यू 22/7 रख दिया। कहीं नहीं गिवन था क्वेश्चन में यूज पाई इक्वल टू 22/7, सो इट इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। सो 1078, और ये कैंसिल करो जरा 11 के ऊपर, चेक इट आउट। कोई बता सकता है फाइनल आंसर कितना आ रहा है? एनीवन? ये वैल्यू सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू और एक नेचुरल नंबर आ रहा है। आर नहीं आ रहा, आर क्यूब आ रहा है अनन्या, 343। बेसिकली ये आ रहा है 7 × 7 × 7 का क्यूब रूट, दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस सिंपल वैल्यू थी, यस भानु, परफेक्ट। सो 7 सेंटीमीटर। अगर मैं अब यहाँ पाई की टर्म में छोड़ देता, डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ, रेडियस पुट करता हूँ, तो दैट विल मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस एंड सो ऑन। इसीलिए यहाँ आपसे एक्सपेक्टेड था कि चाहे क्वेश्चन में गिवन नहीं भी है, यू आर टू यूज द वैल्यू ऑफ पाई। आई होप द बेसिक आइडिया इज क्लियर। इसीलिए मैं चाहता था कि इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली आगे तक सॉल्व किया जाए। इसके बाद तो होमवर्क में कंप्लीट कर लीजिए डबल डेरिवेटिव एंड सो ऑन, सिंस इट इज फॉर द मिनिमाइजेशन। ये पॉजिटिव आएगा, यू नीड टू वेरीफाई दिस। So as you can see right now I'm in the school and I'm sitting in my room, और दो स्टूडेंट्स ही आए हुए हैं 12th ई से जो इस समय प्रेजेंट हैं, बट दे आर टेकन टू सम प्रैक्टिकल वर्क, सो इसीलिए दे विल बी वाचिंग दैट। आई हैड अ वर्ड विद देम, द रिकॉर्डिंग ओनली, नो ऑप्शन। So here comes the question, the last question probably, which I already have discussed with you, given you as your homework, if you recall in the last class. कैसे करेंगे? सिर्फ स्टार्टिंग स्टेप्स की मैं बात करूंगा। Show that volume of greatest cylinder which can be inscribed in a cone of height h and semi vertical angle 30 degrees। अब आपके पास इनिशियली क्या गिवन है? एक कोन गिवन है, और अगर कोन गिवन है इसका मतलब इसकी सारी डायमेंशन फिक्स हो चुकी हैं, ये याद रखिए। एनीथिंग विच इज गिवन, तो इसकी हाइट आपको ये h कहा है, एंड सेमी वर्टिकल एंगल वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, ये वाला एंगल जो है दिस इज 30 डिग्रीज।
सो दिस इज ए फॉर अ सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फ्रंट व्यू है। और अब क्या किया, इसके अंदर एक ग्रेटेस्ट सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है। तो व्हेन आई इंस्क्राइब अ सिलेंडर, तो इमेजिन करिए ऐसा डायग्राम पॉसिबल है, like this. So this is the cylinder which I have inscribed in this. जितना नीट डायग्राम बनाएंगे उतना आपके लिए इजी रहने वाला है। तो इसलिए मैंने वो क्रॉप करी हुई इमेज नहीं ली है कि एग्जाम में तो आप खुद हमें बनाना है, तो यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ बेसिक फिगर्स एज सच। तो अब ये सिलेंडर आ गया, एक ये स्मॉल एच शुड नॉट कंफ्यूज हेयर, सो लेट मी मेंशन इट ओवर हेयर कि ये जो है कोन की हाइट है और ये एच गिवन है। सो व्हाट आई विल डू, कोन का रेडियस स्मॉल आर ले लिया क्योंकि हाइट स्मॉल एच की टर्म में है, और अब हम इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस कैपिटल आर एज्यूम कर लेते हैं और सिलेंडर की हाइट ले लेते हैं कैपिटल एच। तो आपको क्या जस्टिफाई करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पहली बात मैक्सिमम है और किसके इक्वल है, 4/81 पाई एच क्यूब। क्विकली चेक करिए आपके पास बाय सिमेट्री, इफ आई से कॉल दिस एज ई, दिस एज से एफ, तो ट्राइंगल AEF इज सिमिलर टू ADC। चेक दिस आउट, ये वाला एक छोटा ट्राइंगल, ये वाला AEF, और दूसरा कौन सा कहा, ये वाला। सो एवरीथिंग इज सिंपल, सिमेट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। ये ट्राइंगल ये सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज आई कैन यूज द ट्रिग्नोमेट्री ऑल्सो। तो AE कितना है, इफ आई नोट केयरफुली, H माइनस H हो जाएगा ओवर व्हाट इज AD, H, व्हाट इज EF एंड व्हाट इज DC। इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो एक ये रिलेशन आ गया। अब किसे एलिमिनेट करना है वो हमें यहां से पता चलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। प्लीज याद रखो सिलेंडर के लिए कैपिटल आर एंड कैपिटल एच है। 1 मिनट मोर टू गो, तो आइडिया लग जाएगा कि मैं यहाँ आर की वैल्यू इजीली एलिमिनेट कर सकता हूं। तो इस आर की वैल्यू आ गई, H इंटू आर कितना है, R इंटू एच माइनस एच, और R इज R बाय एच, H माइनस एच। इसका स्क्वायर कर दिया, यहां वैल्यू पुट कर दिया। रिमेंबर कोन गिवन था, तो स्मॉल आर स्मॉल एच दे ऑल आर कांस्टेंट। So this is the only function of capital H. Apply the product rule and simplify this in a usual way. Please complete this in your homework and everyone mark your attendance. 30 डिग्रीज का रोल लास्ट में समझ आ जाएगा आपको। इस ट्राइंगल में tan 30 डिग्रीज को सोचना रहेगा, और tan क्या हो जाता है इस छोटे ट्राइंगल में, अगर मैं बात करूं, परपेंड EF बाय बेस AE। तो EF आपका है कैपिटल R और ये है H माइनस H, तो इसका कहीं ना कहीं रोल रहा होगा, दैट यू कैन इजीली वेरीफाई। चलिए प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। So from the next class, from Monday, we are going to start with the next chapter, linear programming problems, LPP.
CBSE has already released the sample papers. You must have received that, or I will share that file containing all the sample papers all together and along with the marking scheme. Have a good day, everyone. Please leave the class now. Thank you very much.